Good morning, one and all. Welcome to St. Thomas Bethany Convent School. And as you know, today we are going to celebrate home library activity in the St. Thomas Bethany Convent School. So, this is Harshara teacher, and I'm going to welcome you in this activity. So, my dear students, a library is a structure within the school that houses a collection of books, audiovisual materials, and other content that services common use to meet the educational, informative, and recreational needs of the users. The chief objective of the libraries is to meet the academic needs of the particular educational institution which it serves. Besides serving the students in their studies the and teachers in their research, the school libraries aim to creating interest for reading among the students who get the best of resources and environment here. To motivate the students with the help of books, so that our school's principal, respected Sister Prasada, find a new innovative way to encourage the students' reading habit. She find out the new innovative idea of a home library activity, and I am very glad to say that this activity is the best activity, and it will create imagination power and even the reading habit amongst the school students, and so that they will start collecting the material in form of books. So now I would like to call Sister Prasada and give us a message on it. Thank you, students. Good morning to everyone. My dearest student, I hope everyone safe at home and studying well. Today, Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is an event celebrated in India to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi. It is celebrated annually on 2nd October. Wishing you a happy Gandhi Jayanti. A man is the sum of his action, of what he has done, of what he can do. Mahatma Gandhi would often say, "My life is my message. Let us follow it." One more importance in our academic year. Today, you are busy with making library at home. Home library. A library is an important source of knowledge. It develops the important habit of reading. Academic achievement of the students. A library plays a very important role in promoting the progress of knowledge in many students. Library plays a very healthy role throughout our life. It provides a very calm and disciplined atmosphere which helps students to maintain a good concentration on their studies. What is a home library? Creating a home library is a fun way to display your interest while establishing a special space for reading. A library is truly integral to the teaching and learning process. It is the center of the academic and medicine for our soul. Remember, it is a medicine for our soul. So, importance of book reading. You know that how to use medicine for our health. Sometimes we know now in pandemic situation, all are trying to use many medicine to keep our life. So same like medicine
Library also medicine for our soul. Try to become a good reader. Thank you. सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सरिता टीचर। पुस्तकों का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र हैं। इनमें वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है तथा कठिन से कठिन समस्याओं के निदान के लिए बल प्रदान करती है। जिस व्यक्ति को पुस्तकों से लगाव है, वह कभी भी स्वयं को एकाकी व कमजोर अनुभव नहीं कर सकता है। महान देशभक्त एवं विद्वान लाला लाजपत राय जी ने पुस्तकों के महत्व के संदर्भ में कहा था, मैं पुस्तकों का नरक में भी स्वागत करूंगा। इनमें वह शक्ति है जो नरक को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। एक शांत कमरा, ढेर सारी किताबें, कई लोग, फिर भी चुप। कुछ याद आया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किताबों से भरे उस कमरे की जिसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय जिसका संधि विच्छेद करने पर पुस्तक और आलय होता है। आलय का अर्थ होता है स्थान। इसी प्रकार पुस्तकालय का अर्थ हुआ पुस्तकों का स्थान। सुप्रभात छात्रों, मैं संगीता टीचर। तो बच्चों, आप सभी ने होम पुस्तकालय मतलब घर का पुस्तकालय बनाया है, तो इसके महत्व बहुत सारे होते हैं और वह महत्व और लाभ क्या है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आसानी से हमें किताब उपलब्ध हो जाती है पुस्तकालय में। फिर दुर्लभ किताबों को पढ़ने का अवसर मिलता है, मतलब बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो पढ़ने का अवसर मिलता है। गरीब छात्रों के लिए लाभ होता है। बाहर हम पुस्तकालय में जाकर जो चाहे किताब लेकर हम वो पढ़ सकते हैं। किसी के ऊपर हमें कुछ संशोधन करना है, कुछ करना है, उसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता होती है। वो हम वहाँ से किताब लेकर कर सकते हैं। शांत वातावरण रहता है, अच्छी किताबें हमें वहाँ प्राप्त हो जाती है और मानव इतिहास की रक्षा करता है पुस्तकालय। वो कैसे कि हमारे इतिहास में हो चुके पूर्वज, महान व्यक्ति, वैज्ञानिक, इनके अमूल्य किताबें वहाँ हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो किताबें के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पुस्तकालय में इतनी संपदा भरी रहती है मगर भी कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। इतनी सारी संपत्ति है किताबों में लिखी हुई, लेकिन कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। इसके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। गलती जीवन का एक पन्ना है, गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूर पढ़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी खो ना देना, कभी खो ना देना। मतलब हम छोटी सी गलती करते तो पूरा दोष देते हैं, नहीं, उस गलती को सुधारा जाए तो पूरा जीवन अनमोल है। तो इसलिए खुद को संवारने के लिए, संभालने के लिए हमें किताबों की आवश्यकता होती है। जीवन में आसानी से सफलता पाना चाहते हो तो किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। और पुस्तकालय में तो असीमित भंडार होता है, जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान का ग्रहण हो सकता है, ज्ञान अर्जित हो सकता है। इसलिए हमें किताबों से हमेशा दोस्ती करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थ्यांनो, मी राखी टीचर। आज आपण वाचनाचं महत्त्व जाणून घेऊया। वाचाल तर वाचाल ही म्हण सर्वांना माहीत आहे आणि ती आजही लागू पडते। TV, इंटरनेटच्या युगामध्ये कित्येक जण वाचन विसरून गेलेले आहेत। काही जण PDF फॉर्मॅटमध्ये आपला वाचनाचा छंद जोपासतात। खरं सांगू, पुस्तक हातात घेऊन वाचण्याची मजा काही वेगळीच आहे। वाचन माणसाला स्वयंपूर्ण बनवते। पुस्तक आपल्या डोळ्यावरची झापड उघडते, आपल्याला ज्ञानाच्या अथांग सागरामध्ये आणून सोडते। ज्याप्रमाणे व्यायामशाळेमध्ये आपण शरीरासाठी व्यायाम करतो,
त्याला आकार देतो, त्याप्रमाणे वाचन हा एक बुद्धीचा व्यायाम आहे, मनाचा व्यायाम आहे. त्यामुळे आपले जीवन समृद्ध आणि संपूर्ण बनते. आपल्या कल्पनाशक्तीला, सर्जनशीलतेला म्हणजेच नवनिर्मितीला प्रेरणा देते. वाचनामध्ये आपण स्वतःमध्ये, इतरांमध्ये व संपूर्ण जगामध्ये बदल घडवून आणू शकतो. ज्येष्ठ साहित्यिक वि.स. खांडेकर म्हणतात, वाचनाने माझ्या जीवनातील आनंदाच्या क्षणामध्ये अधिक सुगंध भरला आणि दुःखाच्या वेळी संकटांशी लढण्याचे सामर्थ्य मला या वाचनानेच दिले. वाचनासाठी आपल्याकडे भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे. कथा, कादंबरी, महाकाव्य ग्रंथ, अनेक प्रकारचे साहित्य उपलब्ध आहे, पण कमी आहे फक्त वाचणाऱ्यांची. प्रत्येकाने आपला वाचनाचा छंद जोपासला पाहिजे. अवांतर वाचनाची गोडी लावली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासाच्या पुस्तकाच्या व्यतिरिक्त अवांतर वाचनाची पुस्तके वाचली पाहिजे. या वाचनाच्या छंदामुळे आपल्याला तर फायदा होईलच, याने आपल्या समाजाला आणि आपल्या राष्ट्राला सुद्धा फायदा होईल. अशा प्रकारे प्रत्येकाने आपल्या वाचनाचा छंद जोपासावा. धन्यवाद. Now we have seen the various views about the library and the books. So now we will see the world most popular and largest library, the 12 libraries in the world. Okay, and these are the 12 libraries of the world. Now we have seen the various views about the library and the books. In this way, we have seen the most popular and largest libraries in the world, and we have listened the thoughts of Sister Prasada. I would like to thank her for sharing her views on home library and books. And even I would like to thank Sarita teacher, Rakhi teacher, and Sangeeta teacher. They have given their precious time for sharing their views on books, library, and the humankinds. And I would like to conclude this video with the thought of Mahatma Gandhi that if we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. So, my dear children, you are very precious things for the future. So, stay safe, stay healthy, and stay home. Thank you very much.